Dear student, today I will be discuss what do visual representations tell us about the revolt of 1857. One of the important record of the mutiny of 1857 is the pictorial images prepared by the British and Indians. Paintings, pencil drawings, posters, etchings, cartoons and bazaar prints about this revolt are available. The available information in these pictures and their descriptions given by historians very important about revolt of 1857. British pictures offer a variety of images that were meant to provoke a range of different emotions and reactions. In some of the pictures made by the British heroes were commemorate who saved the English and repressed the rebels. One of the painting relief of Lucknow was painted by Thomas Jones Barker in 1859 is an example of this type painting. When the Lucknow was besieged by rebel forces, the Commissioner of Lucknow, Henry Lawrence, collected whole of the Christian population and took shelter in the heavily fortified residency. Later on, Lawrence was killed, but the residency remained protected under the command of Colonel English. On September 25, Henry Howlett and James Outram reached over there and cut through the rebel forces. They even reinforced the British troops. After 20 days, a new commander of British forces in India, Colin Campbell, came over there with his forces and saved the besieged British forces. The British historians described the siege of Lucknow and their survival as the ultimate victory of the British power. The paintings of Barker shows the moment of Campbell's entry. It created a sense that the troubled times and the rebellion was over. The British emerged victorious. Joseph Noel Paton painted a picture in memoriam 2 years after the mutiny. In this picture, English women and children huddled in a circle. They are looking helpless and innocent, seemingly waiting for the inevitable violence, dishonor, and death. This painting stirs up the imagination of spectators. It also tries to provoke anger and fury. This painting also represents the rebel as violent and brutish. In another set of sketches and paintings, we see women
in a different light. They appear heroic, defending themselves against the attack of rebels. In a picture, Miss Wheeler stands firmly in the center and is shown defending her honor, single-handed, killing the attacking rebels. In all the British pictures, the rebels are represented as demons. The woman's struggle to save her honor and her life, in fact, is represented as having a deeper religious connotation. It is a battle to save the honor of Christianity. With the waves of shock and anger spread in England, demands of retribution grew very strongly. Pictures and news about the revolt created an atmosphere in which violent repression was seen as necessary and just. It was as if demand of justice was a challenge to the British honor and power to meet ruthlessly. An allegorical female figure of justice is shown with a sword in one of her hand and a shield in the other hand. Her face expresses rage and her desire to take the revenge. Under her feet she is trampling sepoys, which a crowd of Indian women and children watch with fear. Except these, there were numerous pictures and cartoons in the British press which were giving stress on the need of brutal repression and violent revenge. In one of the cartoons published in the pages of Punch, a British general of comic stares, Canning is shown as a looming father figure with his protective hand over the head of Sepoy, who still holds an unsheathed sword in one hand and a dagger in the other, both dripping with blood. An imaginary that recurs in a number of British pictures of the time. Indian artists represented the rebel leaders as those heroes who were leading the country into the battle. These leaders were rousing the people to righteous indignation against the imperialist rule. Rani Lakshmibai of Jhansi was represented in a picture as a masculine figure chasing the enemy, killing and soldiers and killing the soldiers and fighting till her last. Children in different parts of the country grow up reading the lines of सुभद्रा कुमारी चौहान, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी. In popular prints, Rani Lakshmibai is generally shown in battle armor. She is also shown with a sword
in one of her hands and riding a horse with the other, a symbol of the determination to resist injustice and foreign rule। 1857 के विद्रोह से संबंधित अंग्रेजों के द्वारा तथा भारतीयों के द्वारा बनाए गए चित्रों से तरह तरह की भावनाओं का स्वरूप प्रकट होता है। इनमें से कुछ चित्र अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान करते हुए दिखाया गया है। 1859 में थॉमस जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ इसका एक उदाहरण है। जब विद्रोही सेना ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को एकत्र किया और अति सुरक्षित रेजिडेंसी में शरण ली। बाद में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैंपबेल भारी संख्या में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। बार्कर की पेंटिंग कैंपबेल के आगमन के क्षण को दर्शाती है। उसे जिस प्रकार विजयी मुद्रा में दिखाया गया है तो उससे लगता है कि रेजिडेंसी में घिरे अंग्रेजों के लिए संकट की घड़ी बीत चुकी है और विद्रोह समाप्त हो गया है। इसका अर्थ यह है कि अंग्रेज जीत चुके हैं। इस चित्र में संकट में फंसी अंग्रेज औरतों तथा बच्चों की पीड़ा तथा वेदना को व्यक्त किया गया है। जोसेफ नोएल पेटन द्वारा बनाए गए चित्र में अंग्रेज औरतों और बच्चों को एक घेरे में एक दूसरे से लिपटा दिखाया गया है। वे लाचार और मासूम लग रहे हैं, मानो कि किसी भयानक घड़ी की आशंका हो। वे अपने अपमान, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। यह पेंटिंग दर्शक की कल्पना को झिंझोड़ती है और उसमें गुस्से और बेचैनी के भाव को पैदा करती है। साथ ही इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है। कुछ रेखाचित्रों तथा पेंटिंग्स में औरतें अलग तेवर में दिखाई देती हैं। इनमें उन्हें विद्रोहियों को हमले से अपना बचाव करते हुए दिखाया गया है। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक चित्र में मिस व्हीलर को अकेले ही विद्रोहियों की मौत को नींद सुलाते हुए और अपनी इज्जत की रक्षा करते हुए दिखाया गया है। सभी ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी विद्रोहियों को दानवों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे जैसे ब्रिटेन में क्रोध का वातावरण बनता गया, बदले की मांग मजबूत होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों तथा समाचार पत्रों में हिंसक दमन और प्रतिरोध को और अनिवार्य बना दिया गया। वातावरण ऐसा था कि विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजेयता का प्रदर्शन करना ही होगा। ऐसे में ही एक चित्र में हमें न्याय की एकात्मक स्त्री की छवि के रूप में दिखाई देती है, जिसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है। उसके चेहरे पर अत्यधिक क्रोध और बदला लेने की तड़प दिखाई देती है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। इनके अतिरिक्त ब्रिटिश प्रेस में असंख्य अन्य तस्वीरें और कार्टून भी थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की आवश्यकता पर बल दे रहे थे। प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात से भी उजागर होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया। उन्हें तोपों के मुंह पर बांध कर उड़ा दिया गया या फांसी पर लटका दिया गया। इन सजाओं के चित्र आम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से
दूर दूर तक पहुंच रहे थे। जब प्रतिरोध और प्रतिशोध की ध्वनि में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, तब प्रतिशोध की मांग और मजबूत हो रही थी। तब नर्म सुझाव मजाक बन करके रह जाते थे। अतः जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने यह कहा कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस में उसका मजाक उड़ाया गया। हास्यपरक व्यंग की ब्रिटिश पत्रिका पंच में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया। उसका हाथ एक सिपाही के सिर पर है, जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए है और दोनों हाथों की अंगुलियों से खून टपक रहा है। यह एक ऐसी छवि थी जो उस समय की ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार दिखाई देती थी। भारतीय कलाकारों ने विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में प्रस्तुत किया जो देश को रणभूमि की ओर ले जा रहे हैं। उन्हें लोगों की इस भावनात्मक स्वरूप से दर्शाया गया जिसमें दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध उत्तेजित करते हुए दर्शाया जाता था। रानी को एक हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे हाथ में तलवार लिए अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ते दर्शाया जाता था। उसे एक ऐसे मर्दाना व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया जाता था जो शत्रु का पीछा करते हुए ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही थी। देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्रायः सैनिक पोशाक में, जो अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि इन चित्रों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार किस सोच के व्यक्ति थे और वे क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हम उन लोगों के बारे में भी जान सकते हैं जो इन चित्रों की प्रशंसा या आलोचना करते थे। ये चित्र केवल अपने समय की भावनाओं को ही व्यक्त नहीं कर रहे थे, उन्होंने संवेदनाओं को भी आकार दिया। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित होकर वहाँ की जनता विद्रोहियों को निर्ममता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज़ उठा रही थी। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को साकार करने में सहायता दे रहे थे।